السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست میں مستحکم حکومت چل رہی ہے، غیر ضروری بدنام کرنے کی کوشش۔ جیون ریڈی کا پارٹی میں موزوں مقام، ریونت ریڈی کی پریس کانفرنس۔ کسانوں کو 15 اگست سے پہلے ہی قرض معافی کی جائے گی۔ کوتاگوڑم میں پینے کے پانی کی اسکیم کا بھٹے وکرمارکا نے رکھا سنگ بنیاد۔ صدر جمہوریہ کے خطبے میں اقلیتوں کا ذکر تک نہیں، نوجوانوں اور معیشت کو صحیح سمت لے جانے کا فقدان، بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ شہر میں قتل کا سنسنی خیز واقعہ، عطاپور پولیس اسٹیشن حدود میں ساس سسر نے بہو کو مار ڈالا۔ اور قانون کا محافظ کانسٹیبل نابالغ لڑکی کے مبینہ جنسی استحصال کے سلسلے میں گرفتار، پوکسو کے تحت کیس درج۔ QMax Builders and Developers آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ QMax Builders and Developers، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماوین 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماوین گارڈن ٹاور سالارجنگ کالونی ٹولی چوکی، ماوین ہائٹس ملے پلی، ماوین زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماوین فیمس ریسیڈنسی 7 ٹامس روڈ ٹولی چوکی، ماوین پرل اور ماوین ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماوین آشیانہ ملے پلی، ماوین کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کانگریس کے رکن کونسل جیون ریڈی نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ ترک کر دیا ہے۔ 4 شنبے کو کل ہند کانگریس کمیٹی کے قائدین سے ملاقات کے بعد جمعرات کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیام گاہ پر ناشتے کی دعوت پر ملاقات کی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ کمان کی ہدایت پر جیون ریڈی کی سینئرٹی اور ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ جگتیال کے BRS کے رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار کی شمولیت کے بعد حالات خراب ہو گئے تھے۔ اس پورے معاملے میں PCC کی طرف سے تال میل کے فقدان کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ کمان کی ہدایت پر جیون ریڈی کے وقار میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ جیون ریڈی کچھ کریں، ان کو بہتر جواب دیا ہے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت KC وینو گوپال، دیپ داس منشی نے جیون ریڈی سے بھی ملاقات کی،
लिहाजा अब सब ठीक है। जीवन रेड्डी पार्टी के प्रोग्राम में दोबारा सरगर्म होकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। తక్షణమే గందరగోళ పరిస్థితిని సరిదిద్దడానికి పార్టీ నాయకత్వం ముఖ్యంగా మిత్రుడు శ్రీధర్ బాబు గారు చొరవ చూపించి పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారిని సంప్రదించి అధిష్టానానికి వివరాలు అందజేసి అప్పటికప్పుడు హుటాహుటిన ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి కార్యకర్తలకు ఎలాంటి కష్టం ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా వారు ముందు నిలబడి వెంబడే చర్యలు చేపట్టడం, అదేవిధంగా అధిష్టానం కూడా జీవన్ రెడ్డి గారి అనుభవం, జీవన్ రెడ్డి గారికి ఉన్న గౌరవం, జీవన్ రెడ్డి గారికి ఉన్న కమిట్మెంట్ తెలంగాణ ప్రజల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల దృష్టిలో పెట్టుకొని వెంబడే వారిని సంప్రదించి కేసీ వేణుగోపాల్ గారు, దీపాదాస్ మున్షీ గారు స్పష్టంగా మీ యొక్క గౌరవానికి ఏమాత్రం భంగం కలగకుండా కరీంనగర్ జిల్లా జగిత్యాల శాసనసభ నియోజకవర్గంలో ఉండే ఇన్ని సంవత్సరాలు జీవన్ రెడ్డి గారికి అండగా నిలబడ్డ కార్యకర్తలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా పార్టీ చర్యలు చేపడుతుందని చెప్పి వారికి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. పార్టీ హైకమాండ్ ఆదేశాల మేరకు ముఖ్యమంత్రిగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఆ ఆదేశాలను అమలు చేసి జీవన్ రెడ్డి గారి యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడి ఆ ప్రాంత కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను ఆదుకోవడానికి పార్టీ ఆదేశించింది, మేము నిర్ణయించుకున్నాం. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर की अकल ठिकाने नहीं आई। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाद सियासी जमातों की जानिब से चलाने जाने वाली मीडिया की खबरों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में कोई भी महकमा बगैर वजीर के नहीं है। उन्होंने कहा कि आला कमान से काबीना में तोसी की बात नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वह महकमे तालीम का कलमदान संभाल रहे हैं। इंतखाबात के वक्त सियासत, उसके बाद सिर्फ रियासत की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। हुकूमत के तमाम वज़रा ने मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए रियासत के मसाइल पर नुमाइंदगी की है। बजट में ज़्यादा फंड्स अलॉट करने का मुतालबा किया है। रियासत में अमन कानून बरकरार है, इसके बावजूद केसीआर हुकूमत को गिराने की सोच रखते हैं। पार्लियामेंट में 16% वोट मिले हैं। बीजेपी के हक में काम किया है। असेंबली में आकर अपोजिशन लीडर का रोल अदा करने के बजाय सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बरकी मामले पर कमीशन का मुतालबा किया और अब जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी कमीशन के खिलाफ हैं। केसीआर को किस बात से एतराज है, वो आकर कमीशन के सामने अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। पीसीसी सदर से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी मियाद 7 जुलाई को खत्म हो रही है। उन्होंने आला कमान से कहा कि पीसीसी ओहदे का इंतखाब करें। नायब वजीर आला भट्टे विक्रमार्का ने कहा कि किसानों की कर्ज मुआफ करके बताएंगे। अमृत 2.0 के फंड्स के जरिए कोत्तागुड़म की बलदियात में मुस्तकिल पीने के पानी की सरबराही के स्कीम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़रा कोमाटी रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, टी नागेश्वर राव के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर भट्टे विक्रमार्का ने कहा कि 15 अगस्त से पहले ही कर्ज मुआफ करके बताएंगे। कर्ज माफी को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अवाम के मशवरा लेने के बाद असेंबली में बहस के बाद क़वायद और शराइत तैयार करके रैतू भरोसे पर अमल करेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने रियासत को गिरवी रखकर 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर मिशन भगीरथा प्रोग्राम किया। इसके बावजूद पीने का पानी फराहम नहीं कर सके। गुज़िश्ता 10 साल हुकूमत करते हुए रियासत को लूट लिया है। 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च करके फरार हो गए हैं। मनसूबा बंद तरीके से रियासत में आबपाशी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। बहुत जल्द सीताराम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा जाएगा। अवामी रुक़बात के लिए जवाबदा होंगे। कोत्तागुड़म और पालवंचा दोनों शहरों को मिलाकर कॉरपोरेशन कायम करेंगे और यहाँ IT हब कायम करने पर गौर कर रहे हैं। मरकजी काबीनी सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गौबा ने जुमेरात को चीफ सेक्रेटरीज, रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के मुंतज़मीन और मरकजी वजारतों के सेक्रेटरीज के साथ जल शक्ति अभियान पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तमाम रियासतों को तमाम आबी ज़खायर बशमूल जियो टैगिंग और साइंसी मंसूबे की तैयारी को
मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तजवीज पेश की कि मनरेगा, कैंपा, फाइनेंस कमीशन वगैरह के तहत दस्तयाब फंड्स को पानी के तहफ्फुज़ की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने गुज़िश्ता साल आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर अमृत सरोवर प्रोग्राम के तहत 75,000 से ज्यादा नए आबी ज़खायर बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरियों की तारीफ की। जैसा कि इस साल जल शक्ति अभियान का थीम नारी शक्ति से जल शक्ति है, मरकजी काबीना सेक्रेटरी ने रियासतों से कहा कि वो खवातीन के SHGs को शामिल करें और उन्हें पानी के इंतजाम और देखभाल में तरबियत दें। उन्होंने पानी के इस्तेमाल से मुतालिक फैसला साजी में खवातीन के किरदार को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। वो ये भी चाहते थे कि रियासतें देही और शहरी पानी की फराहमी के लिए एक जामे O&M पॉलिसी बनाएं। उन्होंने मुनासिब क्लोरिनेशन के जरिए पीने के पानी की फराहमी के मियार को बरकरार रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। अफसरान से कहा गया कि वो बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़िमनी क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें और शहरी इलाकों में आबी ज़खायर की तजावुज़ात पर भी अपनी तवज्जह मरकूज़ करें। आबी ज़खायर की सफाई और ज़ेर ज़मीन पानी के रिचार्ज के लिए मतरूक शुदा बोरवेलों को जिंदा करना, आबी ज़खायर की जियो टैगिंग और रियासती और रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट, इलाकों में शजरकारी को तेज करना और छोटी नदियों की बहाली जल शक्ति अभियान के खुसूसी तवज्जह के शोबे हैं जो इसमें शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PRNRD संदीप कुमार सुल्तानिया, स्पेशल सेक्रेटरी आबपाशी प्रशांत जीवन पाटिल और दीगर ओहदेदारों ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। BRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने सिंगारेणी ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिंगारेणी को खानगियाने के लिए कोयले के कानों का हर्राज किया है। मरकज और रियासती हुकूमत दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मुनाफा बख्श सिंगारेणी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद सिंगारेणी को नुकसान में बताकर खानगियाना किया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये बात सिंगारेणी के हर मजदूर को मालूम हो चुकी है। तेलंगाना तहरीक के दौरान सरकारी इदारों ने बेहतरीन काम किया है। सरकारी इदारों को मुस्तहकम करना BRS पार्टी का उसूल है। तहरीक हो या हुकूमत, इस पर ही अमल किया है। बरखी प्रोजेक्ट सरकारी इदारे BHEL को गोद दिए गए हैं। KCR के दौरे हुकूमत में सिंगारेणी के कानों को हर्राज होने से रोके रखा, लेकिन कांग्रेस 6 माह के अंदर ही बीजेपी से मिलकर तेलंगाना के कोयले के कानों को हर्राज किया। BRS पार्टी सिंगारेणी के लिए जद्दोजहद करेगी। अहम अपोजिशन की हैसियत से BRS पार्टी सिंगारेणी को बचा लेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सदर जमहूरिया के खुतबे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अभी भी 2019 की कामयाबी के ख्वाब में है और ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुई है। सदर जमहूरिया के खुतबे में कहीं भी अक़लियत लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आखिर क्यों? दस्तूर की बात की जाती है और दस्तूर में आर्टिकल 30 में अक़लियतों का वाज़ेह जिक्र किया गया है। नौजवानों का कुछ जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया है कि हिंदुस्तान में अक़लियतों की मजहबी इबादतगाहों को मुनहदिम किया जा रहा है। हुकूमत की मईशत को सही सिमत ले जाने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। पहले तो यह है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है, तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज़ माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा ये है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो उनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि
कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है। और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको? अरे नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे, बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसे जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोल देना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। सीतारामा प्रोजेक्ट के मोटर्स का ट्रायल रन किया गया जो कामयाब रहा। वजीर टी नागेश्वर राव की निगरानी में ये पंप हाउस के मोटर का ट्रायल रन किया गया है जो कामयाब रहा। वजीर ने बताया कि मुत्तहिदा खम्मम और महबूबाबाद जिले के 10 लाख एकड़ को ज़राई आराजी को पानी सरबराह किया जा सकता है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली वीरेशम ने साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी को खुले मुबाहिस का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जगदीश्वर रेड्डी की जायदाद कितनी थी, अब कितनी है, इस पर मुबाहिस के लिए आगे आए। 2 दिन से केसीआर और जगदीश्वर रेड्डी झूठी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में बीआरएस ने कई स्कैम किए हैं। केसीआर के इशारे पर ही असेंबली में जगदीश्वर रेड्डी ने बात की थी, अब तहकीकात न करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर आ जाएंगे, इसलिए तहकीकात के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। अगर केसीआर और जगदीश्वर रेड्डी दोनों इंसाफ पसंद हैं तो कमीशन के सामने हाजिर हों और अपनी सच्चाई जाहिर करें। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि 21 जून से जूनियर और डिग्री कॉलेजेस का आगाज हो चुका है। 35% गेस्ट लेक्चरर्स का रिन्यूअल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सरकारी कॉलेजों से तलबा खानगी कॉलेजेस का रुख कर रहे हैं। फौरन इस मसले की यकसुई की जाए। 25 कॉलेजेस में मुस्तकिल लेक्चरर्स नहीं हैं। 3000 गेस्ट लेक्चरर्स के मुस्तकबिल में उनकी मुलाजिमत की गारंटी दिखाई नहीं दे रही है। खानगी कॉलेजेस तिजारती तर्ज पर काम कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने कहा कि अदालत ने मुकामी रुकन असेंबली को कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम करने की हिदायत दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत ने वाज़ेह किया है कि जियो पर अमलावरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हिदायत पर पूनम प्रभाकर चेक्स तकसीम करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। आपकी तरह हमको भी अवाम ने वोट देकर कामयाब बनाया है, लेकिन आज हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। हम इख्तिदार में आने के बाद इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए शख्सी मुश्किलात खड़ी करें, लेकिन हुजूराबाद की अवाम को कोई तकलीफ ना दें। हल्का असेंबली बहादुरपुरा में सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरकर्दगी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन ने महकमे बरक़ी के अहदेदार डिविजनल इंजीनियर टी लिंगैया के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हल्का असेंबली बहादुरपुरा के जारी और ज़ैर इल्तिवा कामों को पूरा करने में तेजी पैदा करने की जरूरत पर जोर देने के लिए कहा गया। इजलास में हल्का असेंबली बहादुरपुरा के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। वाज़ेह है कि हल्का असेंबली बहादुरपुरा में बरक़ी सरबराही में खलल, ट्रांसफार्मर्स की फेंसिंग और बेंच केबल के कामों में लापरवाही से काम लिया जा रहा था, जिससे अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जीएचएमसी और महकमे आबरसानी व सीवरेज के अहदेदारों के हमरा तरक्याती कामों का मुआयना करके जरूरी हिदायत दी, जहां NP2 पाइपलाइन, VC रोड और सीवरेज पाइपलाइन 43 लाख रुपए की लागत से बिछाई जा रही है। मज़कूरा काम असद बाबा नगर, महमूद नगर और किशनबाग के इलाकों में ज़ेर तकमील हैं। दौरे में रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन के हमरा जीएचएमसी के AE भास्कर, महकमे आबरसानी के अहदेदार ईश्वर, मुकामी रुकन बलदिया भी
मौजूद थे। हज हाउस की इमारत में यौमिया हजारों अफराद अपने कामों के सिलसिले में रुजू होते हैं। इमारत में उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन और हज कमेटी के दफातर मौजूद हैं। इस इमारत में सदर नशीन के दफातर तो आलीशान हैं, लेकिन इमारत में फायर सेफ्टी का निज़ाम नाकारा हो चुका है। इससे पहले फायर सेफ्टी के लिए टेंडर्स तलब किए गए थे, लेकिन कुछ पेशरफ्त नहीं हुई है। वक्फ बोर्ड के मौजूदा सदर नशीन को भी टेंडर्स से मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं है। पुराने फायर सेफ्टी के पाइप गल चुके हैं। कुछ अरसा कबल उर्दू एकेडमी के दफ्तर में आग लगने का वाकया पेश आ चुका है, जिसमें बेशकीमती किताबें व दस्तावेजात तल्फ हो गईं। अगर मुस्तकबिल में यहाँ कोई नागहानी वाकया पेश आता है तो फायर सेफ्टी के नाकारा निज़ाम से नुकसान हो सकता है। हज हाउस में मौजूद दफातर के ओहदेदार अपने दफ्तर के लिए फिक्रमंद जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ रुजू होने वाले अवाम की सलामती पर तवज्जो नहीं दी जाती। महकमे आबकारी संगारेड्डी की टीम ने पाशा मेलारम देहात में छापा मारकर 350 ग्राम ड्राई गांजा जब्त करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इन्फोर्समेंट मेदक डिवीजन की टीम श्रीनिवास, असिस्टेंट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज सुपरिटेंडेंट की टीम गांजे की मुंतकिली की तल्ला पर चौकस थी और वो इस खुसूस पर नजर रखी हुई थी। उसने मस्कुरा देहात में छापा मारकर एक शख्स राजकुमार सिंह की तलाशी ली और इसे गिरफ्तार करके एक मोटरसाइकिल और 350 ग्राम गांजा जब्त किया। मुलजिम रियासत उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन बताया जाता है। आबकारी की टीम में सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, सब इंस्पेक्टर यादैया और हेड कांस्टेबल मोहम्मद अलीम के अलावा दूसरे कांस्टेबल्स ने भी हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद में कत्ल के एक और सनसनीखेज वाक़े में खातून की जान चली गई। मकतूला की शनाख्त अजमेरी बेगम की हैसियत से की गई है। हसन नगर में वाक़े घर में अजमेरी की लाश पाई गई। बताया गया है कि अजमेरी की सास और ससुर ने गला दबाकर कत्ल किया है। बताया जा रहा है कि इतला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। घरेलू झगड़े कत्ल की वजह बताए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुलजिमीन खुद सुपुर्द हो गए हैं। शहर में एक तरफ कत्ल के वाक़यात तो दूसरी तरफ सरखे की वारदातें। अमन व कानून की सूरत हाल को लेकर अवाम में तशवीश पाई जाती है। बालापुर पुलिस स्टेशन बारकस नबील कॉलोनी में सारिकों ने दिन दहाड़े कुफल शिकनी के जरिए सरके की वारदात अंजाम दी है। मकान मालिका ने बताया कि अपने रिश्तेदारों के पास वो गई हुई थी। पड़ोसियों ने घर से आवाजें आने की तल्ला दी। जब वो बाद में घर आई तो घर में सामान बिखरा पड़ा था। घर से सोने के जेवरात, नकद रकम और दूसरे सामान का सरका कर लिया गया। सारिकों ने दिन दहाड़े इत्मीनान के साथ अपनी कार्रवाई अंजाम दी। यहां तक कि फ्रिज में रखी हुई बिरयानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स नौश करने के बाद फरार हो गए। मकान मालिका ने पुलिस से इस सिलसिले में कार्रवाई करने और उनकी मदद की अपील की है। कानून और अवाम के मुहाफिज ही उनके साथ खिलवाड़ करें तो कौन उन पर भरोसा करेगा। हालिया चंद दिनों में कालेश्वरम नलगुंडा में पुलिस ओहदेदारों की तरफ से डांस के साथ मुबैना ज्यादती के वाकयात पेश आए हैं। अब राजेंद्र नगर में भी ताज़ा वाकया पेश आया, जिसमें शमशाबाद आरजीआई पुलिस स्टेशन ने कांस्टेबल प्रदीप ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसका इस्तेहसाल किया। पता चलाने पर लड़की की मां ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पता चला है कि प्रदीप पहले से ही शादीशुदा है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। कल शाम 26/6/2024 के शाम के दिन विक्टिम राजनगर पीएस को आके एक वन कांस्टेबल गाजिला प्रदीप बोल के आरजीआई पीएस में काम करता, उन्होंने चीट करा बोल के वो विक्टिम लेडी 17 ईयर्स का एज है और चीट करके बोल के पिटीशन दिया
उसके ऊपर से आज ये प्रदीप कांस्टेबल को हम लोग अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। शहर में रात के औकात में पुलिस की तलाशी मुहिम और तलाशी गर्दी में और भी शिद्दत देखी जा रही है। साउथ जोन टास्क फोर्स की तरफ से दबीरपुरा दरवाजा, चंचलगुड़ा, छावनी, मादनापेट, संतोष नगर, ईदी बाजार, रैन बाजार, SRT कॉलोनी, याकूतपुरा और एतबार चौक के इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। रात में बिलावजह घूमने वाले नौजवानों की काउंसलिंग की गई। पुलिस ने अमन मुतासिर करने वाले अफराद को भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने गांजे की मुंतकली के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 14 किलो गांजा जब्त कर लिया। रेलवे पुलिस के मुताबिक उसने रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर मौसर अंदाज में तलाशी मुहिम चलाते हुए रियासत उड़ीसा से तेलंगाना रियासत को गांजा मुंतकली की कोशिश को नाकाम बना दिया और एक शख्स भानसुए सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी उड़ीसा रियासत का रहने वाला भरत फरार हो गया। जब्त शुदा गांजे की मालियत 3,50,000 रुपए बताई जाती है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट beside Sana Enclave टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी crafted just for you, नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासत में मुस्तहकम हुकूमत चल रही है, गैर जरूरी बदनाम करने की कोशिश। जीवन रेड्डी का पार्टी में मौजू मकाम, रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों को 15 अगस्त से पहले ही कर्ज माफी की जाएगी। कोत्तागुड़म में पीने के पानी की स्कीम का बट्टी विक्रमार्का ने रखा संग बुनियाद। सदर जमहूरिया के खुतबे में अक़लियतों का जिक्र तक नहीं, नौजवानों और मईशियत को सही सिमत ले जाने का फुक़दान, बैरिस्टर अवैसी का रद्द अमल। शहर में कत्ल का सनसनीखेज वाक़या। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में सास ससुर ने
बहू को मार डाला। और कानून का मुहाफिज कांस्टेबल नाबालिग लड़की के मुबैना जिनसी इस्तेहसाल के सिलसिले में गिरफ्तार, पॉक्सो के तहत केस दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।